Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Few days ago, I posted a video about my view. What should be the right approach by State Bank for conducting the prim examination? And in this video, I clearly stated that there is 50-50% chance of holding this examination in June. Why I was saying this all along? If you see my April videos, I was always reluctant that any agency will be able to conduct exam up to June. And the right advice at right time has proven once again whatever we foreseen has happened again. Today Railways announced the postponement. Now State Bank of India announced the postponement. The student health is paramount. No organization can be so adamant if they have decided some dates that they will conduct the exam without bothering about the health of or well-being of students. Job is important. Equally important is the life of people. And that's why I was reluctant and I was apprehensive that how State Bank will be in position to conduct the exam on so-called dates in circulation like June 12, 13, 19. People are commenting, telling, sir, this is already booked, this is already booked. I was not believing. Why I was not believing? Because my experience says booking has no meaning. Important thing is circumstances. Important thing is public safety. Important thing is safety of candidates. But at the same time, I will drop a wise advice. Whenever some postponement happens, people they are tended to slow down their efforts. Kindly don't slow down your efforts. If situation improves in June, we can see examination in July because they have not changed the date of mains. Okay? This is only deferment of date of pre. So they can very well conduct pre in the month of July and conduct mains in July. So DACs are very clear now. No exam in June. You have got extra breather time. Utilize it. Identify your weaknesses and remove these weaknesses. Be a strong contender. Don't be let down by the immediate news. Banking exams are always the fastest selection that is being conducted. Today I posted a video on railways. Now some people have misread that. They are unnecessary putting comments that this is superior, that is inferior. That is not what we are discussing. Question is who is providing you employment? A organization job may be much superior, but 3 years, 4 years, 5 years, no result. Okay, so it is always important. We are not comparing the jobs. We are not in this process of comparing the job. Every job has own benefit and merits and demerits. What we are trying to emphasize is that if you are looking for a job, if you want to wash away your unemployed tag, banking provides this opportunity faster than any other sector. That is the simple words that I wanted to place before you. We are not comparing which one is superior, which one is inferior. Nothing is superior. An organization that can feed your family is always superior than an organization who always keeps you waiting, and ultimately don't give you a job. I am very practical person. If an organization gives you a job, that is the superior organization for you. If an organization you apply for a job, they don't give you a job, what is the use to you? It may be superior, but it is of no use to you. You have to see the usefulness from your point of view. I am not saying anything against any organization. I am simply passing information, and the purpose is not to say this is superior or this is inferior. Every organization is superior.
अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI जूनियर एसोसिएट का प्रीम एग्जाम पोस्टपोन हो गया। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला, मेरा क्या व्यू है। मैंने उसमें साफ ये पक्ष रखा था कि 50-50% चांस है एग्जाम होगा या नहीं होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? कुछ लोग बड़ा दावा ठोकते थे कि 12 जून, 13 जून, 19 जून को होके रहेगा, कुछ भी हो जाए, ये स्टेट बैंक है, देख लेना, ये जरूर होगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं हो सकता जो पब्लिक सेफ्टी या स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क करके एग्जाम करा देगा। जॉब जरूरी है पर जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको नजर आ रहा है कि सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है एग्जाम कराने की, लाखों की तादाद में लोग बीमार पड़े हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इतनी कोई जल्दबाजी में एग्जाम नहीं कराया जा सकता। इसीलिए आई वॉज वेरी अप्रीहेंसिव। अगर आप अप्रैल की मेरी वीडियोस देखें, मैंने उसमें क्लियरली हिंट किया था मुझे नहीं लगता जून तक कोई एग्जाम होगा। फिर भी नोटिफिकेशन आया स्टेट बैंक का, उसमें कहने लगे जून में होगा। जब तक वो ऑफिशियली ना कहे हम नहीं कह सकते कि ये सही नहीं कह रहे हैं, पर मेरा अंतरात्मा ये कहती थी कि जून तक एग्जाम नहीं होगा। मैंने कभी भी ये वीडियो में ये कोशिश नहीं की आपको जताने की कि जून में एग्जाम हो जाएगा, जैसा कई लोग दावा ठोक रहे थे। क्योंकि आपका मन क्या कहता है, सर्कमस्टांसेस क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आज हालात ठीक नहीं है एग्जाम कराने के, और इन दिनों में एग्जाम कराना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया स्टेट बैंक ने, एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। ये सबके हित में है। अब जो लोग इसकी फेवर में थे या जो इसकी फेवर में नहीं थे, उन सब लोग सेटिस्फाइड हैं। अब आपको मेहनत करनी है, किसी भी हालत में अपनी तैयारी को फीका नहीं करना है। कई बार ये गलती कर बैठते हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, हम अपनी तैयारी को फीका कर लेते हैं। फीका नहीं करना है, इसको इस्तेमाल करना है। वीकनेस को रिमूव करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, इसको रिमूव करिए। और ऐसा भी संभव है कि अगर जून के अंदर स्थितियां ठीक हो जाएं, जुलाई के शुरू में आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाए और मेन जुलाई में ही हो जाए, क्योंकि मेन की डेट पोस्टपोन नहीं की है। ठीक है, ऐसे मैंने एक रेलवे की वीडियो डाली, उसमें कई लोगों ने उसको गलत डायरेक्शन में ले गए हैं। वहां पे वो इंफीरियर सुपीरियर के कमेंट करने लगे। जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो ये बताया है कि 2019 में एक प्रोसेस शुरू हुआ, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। कोविड तो 20 में आया है ना, कोविड तो 20 और 21 में आया है, 19 में तो कोई कोविड नहीं था। तो इस सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा कि जो बैंकिंग की रिक्रूटमेंट है वो फास्टर है। कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है, इस बहस का क्या फायदा है? आपके लिए कौन सुपीरियर है जो आपको नौकरी दे दे? आपने 2019 में अप्लाई किया, आज तक एग्जाम कंक्लूड नहीं हुआ, नौकरी कब मिलने की कोई भरोसा नहीं है, उसके लिए हम आर्गुमेंट कर रहे हैं सुपीरियर इंफीरियर। मेरा पेट तो उस ऑर्गेनाइजेशन से भरेगा जो मुझे नौकरी देगा। सिर्फ इतनी बात मैंने कही है, क्योंकि आप लोग अनएम्प्लॉयड है। मैंने आपको राइट एडवाइस ये दी है कि हमें उन क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए जहां पर सिलेक्शन प्रोसेस छोटा हो और हम नौकरी अप्लाई करें और हमें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, ताकि जो अनएम्प्लॉयड का टैग है वो हट जाए। इसमें क्या बुराई है? अब कोई चीज बहुत अच्छी हो सकती है, इसके अंदर तो कोई विवाद नहीं है, पर वो मिले तो सही। अगर एक प्रोसेस 2019 में शुरू होता है, 2019 पूरे साल एग्जाम ही नहीं शुरू होता है, 2020 में भी एग्जाम शुरू नहीं होता है, 2020 के दिसंबर में जाके वो एग्जाम शुरू होता है, फिर बीच में रुक जाता है। तो ये तो फैक्ट्स हैं। और कुछ ने कहा जी आपने कह दिया फ्यूचर में नहीं होगा। मैंने फ्यूचर वर्ड नहीं यूज किया, मैंने शब्द इस्तेमाल किया नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मीन्स जून में संभव नहीं है। मई के अंदर नियर फ्यूचर जून होगा, जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है। अब देखो स्टेट बैंक ने भी कह दिया ना जून में नहीं होगा, दैट मीन्स नियर फ्यूचर में नहीं होगा। पर जुलाई ऑनवर्ड्स तो महीने खुले हुए हैं एग्जाम होने के लिए। तो ऐसे बातों को रंग मत दीजिए। जो ये चैनल है राइट एडवाइस एट राइट टाइम है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर इंफीरियर की हम बात नहीं करते। आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी सेक्टर में जाइए, पर क्वेश्चन ये है कि क्या वहां पर रोजगार मिल गया? एज ए अनएम्प्लॉयड पर्सन हमारी प्रायोरिटी क्या होनी है?
अब कुछ लोग अभी प्राइवेट जॉब के लिए मुझसे पूछते हैं कि सर प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लूँ। मैं कहता हूँ कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? इसलिए कर लीजिए, नौकरी मिलना जरूरी है। जिस तरह के हालात इकोनॉमी में बन रहे हैं, कल को नौकरी मिलना ज़्यादा जरूरी होगा। नौकरी के अंदर ये डिस्कशन का कोई मायना नहीं रहेगा कौन सा इन्फीरियर कौन सा सुपीरियर जॉब है। गॉड ब्लेस यू ऑल।